So let's move the second part or next part of the pigments and colors related to the food. We have discussed two pigments, three pigments actually: hemoglobin, myoglobin, and chlorophyll. In the previous lectures, the third pigment, natural pigment, is the anthocyanin. This anthocyanin, this pigment is responsible for the red, purple, and blue color of fruits, vegetable, and flowers. जितने भी आपके रेड, ब्लू और पर्पल, जैसे ब्रिंजल हो गया, ये वेजिटेबल, ब्लूबेरीज, फ्रूट्स, येलो कैप्सिकम, और इन सब में जो है वो इनके कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी रेड कैप्सिकम, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है, एंथोसाइनिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कलर. These compounds, these pigments are water soluble compounds. These are found in the cell sap. जो सेल का सैप होता है ना, जो ये आपके प्लांट सेल्स होते हैं, इनके सैप में this pigment is found. All the anthocyanins are actually derivatives of the basic flavellum and basic flavellum cation structure. Could you please share the pigments and color PDF? Somebody please share. The pigment and color PDF which I have posted in the previous class. कामरान शेयर कर दो. Okay. Pigments and colors. Next page. Next page. Next page. Move to the next page, Kamran. Kamran, move to the next page. मैम फ्लेवनाइट था. Anthocyanin. Fourth page. Fourth page. Come back. यस मैम. फोर्थ पेज मैम ओपन है. और एक पेज पीछे आओ. ये ऊपर वाला ही जो है. Yes. 8.3 है ना मैम, एंथोसाइनिन. यस मैम ओपन. Anthocyanin. यस मैम ओपन. Anthocyanin. ठीक है. यस मैम. ये बेटा स्ट्रक्चर पे ये तुम्हारा बन के आ रहा है मार्क. एक मिनट मैम फिर से शेयर करके देखते हैं. थोड़ा सा ऊपर नीचे से. अभी ठीक है मैम. Yes. Fine. Fine. Yes. Fine. ओके.
एक मिनट मैम म्यूट कर दे। So you can see that basically this all the anthocyanins derivatives, all the anthocyanins are derivatives of the basic flavellum cation structure. So what is the structure of flavellum cation? You can see the two rings and ये यहाँ पर देखिए position 8 और जो इसके दूसरा एक रिंग फिनाइल जो ग्रुप अटैच है या रिंग अटैच है and numbering 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash is given. एंड अब यही जो पोजीशंस है इन पोजीशंस पे जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ दी दिस केटायन और एंथोसायनिन्स विल बी will be classified. So basically anthocyanins है कि these are the polyphenols containing hydroxyl groups in the position 3, 5, 7. देखिए ये this is the structure of flavellum cation और इस flavellum cation पे जब position 3, 5 और 7 पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो दिस गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसायनिन. अभी आपको क्या बताया कि ऑल द एंथोसायनिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द फ्लेविलियम केटायन. तो बेसिक आपका कंपाउंड क्या है जो पेरेंट कंपाउंड है दैट इज द फ्लेविलियम केटायन. इस फ्लेविलियम केटायन की अगर थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पे OH ग्रुप मेक्स इट एंथोसायनिन. Generally, sugar moiety is linked to the position 3 and sometimes to the 5 or 7 position. Some contains 2 sugar with either both on the 3 position or on the each on the 3 and 5 position. किसी किसी में क्या होता है कि 2 sugar moieties होती है या तो दोनों 3 position पे होंगी या क्या होगी एक 3 पे और एक 5 position पे होगी. When 3 sugars are present, usually 2 of them will be in a position of 3 with 1 in 5. अगर 3 शुगर पोजीशन शुगर मॉइटीज प्रेजेंट है तो 2 कहाँ पे होंगी, 2 जो होंगी वो 3 पोजीशन पे होंगी और थर्ड कहाँ पर होगी 5th पोजीशन पे. किसी भी एंथोसायनिन में 2 से ज्यादा मोर देन 3 शुगर मॉइटीज आर नॉट पॉसिबल और यू कैन से द नो एंथोसायनिन कंटेन मोर देन 3 sugars. And these sugar moieties are basically glucose, ramenose, galactose, xylose, and arabinose. And due to this presence of sugar moiety in anthocyanin, the sugar molecule is water soluble. Means the anthocyanin molecule is soluble. So these sugar moieties are responsible for the solubility of these anthocyanins into the water. Solubility of this anthocyanin molecule in the water. The aglucone means similar जो है उसी के derivative जो है anthocyanin के क्या है anthocyanidine. A number of anthocyanidines are known. 6 anthocyanidines are important. देखिए anthocyanin में क्या होगी sugar moiety होगी और sugar में से जब बाकी निकल के केवल OH ग्रुप रह जाएगा तो क्या हो जाएगा साइनिडीन. ठीक है, ये साइनिडीन जो बेसिक 6 टाइप के साइनिडीन है दीज आर वेरी कॉमन इन शुगर, वेरी कॉमन इन फूड्स. ये कौन कौन से पेलार्गोनिडिन, साइनिडिन, डेल्फिनिडिन, पियोनिडिन, पिट्यूनिडिन एंड माल्बिडिन. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पेलार्गोनिडिन. पेलार्गोनिडिन में क्या है फ्लेविलियम केटायन के थर्ड, फिफ्थ और 7th पोजीशन पर OH ग्रुप इट इज पेलार्गोनिडिन एंड 4 डैश पोजीशन पे OH ग्रुप. ठीक है, पेलार्गोनिडिन कंटेन्स 4 OH ग्रुप. 3, 5 मेन जो केटायन है आपका उसके 3, 5 और 7 पोजीशन पे और जो अटैच लिंक है यानी कि 4 डैश पोजीशन पे इट इज द पेलार्गोनिडिन. दूसरा क्या है साइनिडिन. साइनिडिन में 3, 5, 7 पोजीशन पे तो OH है, उसके अलावा 3 डैश और 4 डैश पोजीशन पे OH यानी टोटल 5 OH ग्रुप्स. डेल्फिनिडिन 3, 5, 7 and 3 dash, 4 dash, 5 dash all three contain OH. So the presence of this OH group and position of this OH group classified the different type of cyanidine and anthocyanidine compound. So in pelargonidin
4OH 357 में तो सब में ही है, बस 4' पोजीशन। साइनिडिन में 357 तो इज कॉमन, 3' एंड 4'। डेल्फिनिडिन 3', 4' एंड 5' पोजीशन। इसके अलावा जो रेस्ट 3 बचे, कौन से? पियोनिडिन, पिट्यूनिडिन एंड माल्विडिन। इनमें क्या है? 3', 4', 5' में OCH3, OH एंड H इन पियोनिडिन। ठीक है, सिमिलर ये बाकी फ्लेविलियम कैटायन का स्ट्रक्चर जो है OH, जो शुगर मोइटीज थी वो हट के OH जो है वो रहेगा ही आपके एंथोसाइनिडिन में। जो एंथोसाइनिडिन है उसमें केवल पोजीशन किसकी? जो आपके ये डैश वाले ग्रुप है, 1' से लेके 6' तक। तो इन तीनों में तो OH ग्रुप ही है। और इसके बाद फोर्थ जो आपका एंथोसाइनिडिन है, दैट इज पियोनिडिन। उसमें क्या है? 3', 4' और 5' पोजीशन पे OCH3, 3' पे OCH3, 4' पे OH एंड 5' पे H, और बाकी 357 पे OH। ठीक है, इसके बाद पिट्यूनिडिन में 3' पे OH, 4' OH, 5' is OCH3, and in malvidin 3' OCH3, 4' OH and 5' OCH3. So these are the structures of the you can draw the structure of pionidiin, pitunidin and malvidin by placing these groups on the relevant position. You can draw these structures. देखिए फ्लेवेलियम, it is this anthocyanin exists in the form of ion, flavelium cation. So due to nature of this positive charge, it is highly reactive. Anthocyanins are highly reactive. That's why very easily they undergo the reaction in which the decoloration of the food occurs. So the decoloration actually depends on the pH and temperature. At low pH, the color of anthocyanin is intense red. As the pH value rises, the color changes through orange and red to blue or purple. तो ब्लूबेरीज वो ब्लैक वाले अंगूर अगर खाते हो ना, देखा होगा जो ठीक से प्रॉपर्ली राइपन नहीं होते, वो रेड कलर के होते हैं, दैट कंटेन एंथोसायनिन। जो ब्रिंजल बैगन जो खरीद के लाते हैं, वो जो कच्चा होता है तो थोड़ा रेडिश होता है ना, जब एकदम पका होता है तो एकदम ब्लूइश, बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाता है। वो दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये चेंजेस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्योंकि जब मॉलिक्यूल चेंज होता है तो पीएच क्या होगा? चेंज होगा। So these color changes are due to the changes in the molecular structure of the anthocyanin. जिसमें क्या होता है कि क्विनोइडल बेसिस और एनहाइड्रो बेसिस से किसमें? कार्बेनॉल बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रिजर्वेशन की अगर बात करें, व्हेन फूड इज प्रिजर्व्ड, दीस फ्रूट्स वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड। प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? अगर आप ऐसे फ्रूट को रख कर छोड़ दोगे तो कलर क्या होता है? जो फर्स्ट अपीयरेंस है, डिग्रेडेशन होगा, तो सबसे पहले कलर जो है वो डिस्कलरेशन स्टार्ट होता है, अपीयरेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज डिस्कलरेशन एक्चुअली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड। तो जैसे अब स्टोरेज के लिए सल्फर के कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, these are used for the preservation. So in the presence of these sulfide or sulfur dioxide, there is a rapid bleaching of anthocyanin. क्यों? क्योंकि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है, क्योंकि जैसे हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से क्या है? आयन आयनिक फॉर्म में, तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है, एंड ऑन अटैचमेंट विद sulfur dioxide on second and fourth position makes a compound which is actually colorless and quite stable. तो अगर रिमूवल हम कैसे करते हैं? बॉइलिंग से, एसिडिफिकेशन से हम रिमूव करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फाइड को, तो क्या हो जाता है? फिर से जो है वो कलर रीजेनरेट हो जाता है।
तो जब भी वेजिटेबल और फ्रूट्स को क्या करते हैं, तो प्रिजर्वेशन करते हैं सल्फाइड और उसके प्रेजेंस में, तो ये कलरलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको फिर से बॉइलिंग करेंगे तो जैसे सल्फाइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रुप रिमूव होते हैं इसमें से, डिटैच होते हैं, तो अगेन जो है कलर एंथोसायनिन का अपीयर हो जाता है। तो इसके बाद में एक सूट आता है स्कॉर्बिक एसिड का। Ascorbic acid, when reacts with anthocyanin, results in the degradation of the compound. The effect ascorbic acid का है is of the particular importance in the preparation of fruit juices. An intermediate peroxide is produced by the degradation of ascorbic acid, and this may be responsible for the reaction with anthocyanin. तो जो fruit juice, जो the oxidation of ascorbic acid is catalyzed by the copper and iron compounds, and this result in a greater oxidation of anthocyanin. एस्कॉर्बिक एसिड अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जूसेस जो उनको प्रिजर्व करते हैं उनको तुरंत क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ऑक्सीडेशन किसका कर देगा, एंथोसायनिन। तो शुगर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसायनिन। Decoloration is not due to the sugar itself, but it's brought about by its degradation products, furfuryl and 5-hydroxymethyl furfuryl. क्योंकि शुगर से when anthocyanin reacts with sugar, there is a degradation of sugar and production of furfuryl and 5-hydroxymethyl furfuryl, which is responsible for the decoloration of the anthocyanin. So accelerated instability of anthocyanin in the presence of sugar derivative, ascorbic acid, amino acid, and phenols may be due to the actual condensation reaction of these compounds or their degradation product with a pigment. यानी कि कौन कौन सी बेसिक कंपाउंड आपके, ascorbic acid, sugar derivative, amino acids and phenol, ये इनकी प्रेजेंस में जो एंथोसायनिन है, इट शोज द एक्सेलरेटेड इंस्टेबिलिटी, तुरंत ही डिग्रेड हो जाता है। कौन से कंपाउंड, एस्कॉर्बिक एसिड, शुगर, अमीनो एसिड और फिनोल की प्रेजेंस में इट डिग्रेड्स इजिली, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। The polymers and degradation compounds produced in these reactions are complex and brownish red. यानी कि जब ये शुगर के साथ एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड और फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक जो पॉलीमर्स एंड डिग्रेडेशन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड ब्राउनिश रेड इन कलर, है ना। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि सम जैम्स स्टोर्ड फॉर लॉन्ग एट रूम टेम्परेचर हैव नो डिटेक्टेबल एंथोसायनिन बट स्टिल हैव रेडिश ब्राउन कलर owing to the decomposition of the compound. बहुत सारे जैम्स नहीं स्टोर, जो ब्रेड में आप लोग जैम लगा के खाते हैं, वो जैम बहुत सारे ऐसे जिनमें कि एंथोसायनिन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेड कलर देते हैं। वो रेड कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ सम कंपाउंड्स। Many enzymes are also responsible for the degradation of anthocyanin. ये देखिए, what is the importance of the study of these properties? These properties means the effect of these compounds on the pigments. इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, शुगर का, एस्कॉर्बिक एसिड का, एंजाइम्स का, इन सब का एक्शन एंथोसायनिन पे पढ़ने की क्या जरूरत है, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने, कोई बता सकते हो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? कोई बच्चा बताएगा? वर्तिका? यस मैम। आप बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ
ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं इसका क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एंथोसायनिन को एंथोसायनिन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैम बोलो मूर्तिका। जब फूड्स को मैम क्या मैंने प्रिजर्व जोर से बोलो करते बेटा। हैं या स्टोर करते हैं ना, उसमें जो ये इफेक्ट की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिजर्व कर सकते हैं एग्जैक्टली फूड को। क्योंकि अभी हमको क्या है कि फूड अभी तो पिगमेंट्स बस, these pigments are natural pigments, यस मैम। these are found in food। यस मैम। और फूड को प्रिजर्वेशन करना, उसका स्टोरेज करना, उसका जो है प्रोसेसिंग करना, यस मैम। तो किस कंडीशन में फूड को कुक किया जाए, किस कंडीशन में फूड को स्टोर किया जाए कि यस उसका मैम। कलर जो है वो मेंटेन रहे, कौन कौन से जी मैम। जो मतलब फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं, these factors also plays a very important role in cooking। कि आपको ये पता है कि अगर आप कोई पर्पल कलर की वेजिटेबल को कर रहे हो तो उसमें आपको क्या डालना है उसका कलर को मेंटेन रखे। अगर डाल दिया तो क्या फॉर्मिक एसिड, देखिए उसमें अगर आप सल्फाइड कंपाउंड यूज कर लिए तो कलर ही चला जाएगा उसका, कलरलेस। अगर आप जो है ब्लूबेरी यस जूस मैम। परचेज करो जाके मार्केट से और उसको जब केन को खोल के जब पियोगे, उसको जब ग्लास में आप ट्रांसफर करोगे तो पर्पल की जगह व्हाइट कलर का निकले तो क्या आप वुड यू लाइक टू हैव? नहीं, आपको नो लगेगा मैम। तो खराब हो गया, बट एक्चुअली दैट इज ड्यू टू द degradation of that pigment। So this is these factors is necessary to study for the maintaining of the properties or color of these pigments। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो तब तक कैसे किसका किसका कौन से कंपाउंड का किस मैम थोड़ा कंडीशन का क्या इफेक्ट है कलर पे, तब तक आप कैसे प्रॉपरेशन कर दोगे, है ना। हाँ बोलो बेटा। आपका थोड़ा आवाज मैम फंस रहा है, शेयर करूँ स्क्रीन। लैग कर रहा है। So, in addition to this, there are many enzymes which are also responsible for the degradation of the anthocyanin. And these enzymes are the glycosidases, phenolases, and peroxidases. Next, pigment is the flavonoids. जितने भी आपके येलो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, those are due to the flavonoids, yellow flavonoid pigment, है ना। तो फ्लेवोनॉइड्स क्या है? फर्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनॉइड। Flavonoids are actually polyphenolic substances and their structure is similar to the anthocyanin and also occur as glycosides। केवल डिफरेंस क्या है कि जो आपके फ्लेवोनॉइड्स होते हैं दे डिफर फ्रॉम एंथोसाइनिन्स only in a position 4 it has a carbonyl group। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? C double bond O group है। You can see the structure of flavone। क्या है आपका? फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है। तो स्ट्रक्चर एंथोसायनिन फ्लेवोनॉइड के क्या होगा? सिमिलर होगा, एक्सेप्ट दी फोर्थ पोजीशन पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फ्लेवोनोन्स, चाल्कोन्स, ऑरेंज, बाई फ्लेवोनाइल्स। तो सबसे पहले आता है येलो फ्लेवोनॉइड।
कोई ऐसा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनी प्लांट जिसमें कि फ्लेवोनॉइड्स ना हो. लाइक पोटैटो, येलो स्किन अनियन, मतलब जो कॉमन वेजिटेबल्स यूज करते हैं उनमें भी क्या है, फ्लेवोनॉइड्स. द मेजर ग्रुप of flavonoids found in nature is the flavonol group consisting of camphorol, quercetin and myrcene. ठीक है. जो मेजर ग्रुप फ्लेवोनॉइड का है उसमें क्या है, बेसिकली 3 आपके जो फ्लेवोनॉल ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, कैम्फेरॉल, क्विरसेटिन एंड मायरसेटिन. लेस कॉमन देन फ्लेवोनॉल्स आर फ्लेवोन्स. फ्लेवोनॉल्स के बाद जो सेकेंड फ्लेवोनॉइड्स है ग्रुप, मतलब फ्लेवोनॉइड जो है वो, देखिए फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोन्स, ये सब आपके किसमें है, फ्लेवोन, फ्लेवोनॉल, फ्लेवोन, दीज ऑल आर दी फ्लेवोनॉइड्स. तो आपके कॉमन जो फ्लेवोनॉइड ग्रुप है दैट इज फाउंड इन नेचर आर दी फ्लेवोनॉल. और फ्लेवोनॉल कितने टाइप के हैं, बेसिकली कितने टाइप के क्या, जो फ्लेवोनॉल कंसिस्टिंग ग्रुप्स जो कॉमनली अवेलेबल हैं, मेजर ग्रुप जिनमें की फ्लेवोनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोज आर दी, ये दीज आर द नेम, कैम्फेरॉल, क्विरसेटिन एंड मायरसेटिन. ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें क्या है, फ्लेवोनॉल ग्रुप है, एंड दीज बिलोंग्स टू द फ्लेवोनॉइड्स. इसके बाद फ्लेवोनॉल के बाद जो नेक्स्ट आते हैं फ्लेवोन्स. सेकेंड कॉमन means these are less common than the flavonols. These are the flavones such as epigenin, luteolin, quercetin. उसके अलावा the other flavonols, you can see the structure of flavone, flavonone. ठीक है, फ्लेवोनॉल, फ्लेवोनॉल देखिए, फ्लेवोन और फ्लेवोनोन जो है वो एक ही जैसे. और फ्लेवोनॉल में क्या है, OH ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है. अब यू कैन सी द फ्लेवोनॉल स्ट्रक्चर ऑफ क्विरसेटिन. क्विरसेटिन में क्या है, 3' 4' और 6' पोजीशन पे OH ग्रुप. इधर 5 और 7 ग्रुप पे OH ग्रुप. एपिजेनिन, दिस बिलोंग टू द फ्लेवोन, है ना. और नारंजिन, नारंजिन इज आल्सो कंपाउंड. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. So these above agglutins exist as glycosides with sugar substituted in the 7, 5, 4 and 3 position. These flavonoid compounds are usually more stable to heat and oxidation than the anthocyanin. ये कंपाउंड जो होते हैं वो एंथोसाइनिन से ज्यादा स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट एंड ऑक्सीडेशन. The 3 flavonol agglutins, quercetin, camphorol and myrcene are found in considerable amount in tea. ठीक है, टी में कौन कौन से फ्लेवोनॉइड होते हैं, कैम्फेरॉल, quercetin and myrcene. In green tea, the 3 compounds and their glycosides comprise as much as 30% of the dry weight. है ना, जो ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी में जो 30% होता है वो क्या होता है, ये तीनों कंपाउंड्स होते हैं एंड देयर ग्लाइकोसाइड्स. टोटल वेट का अगर आपने 10 ग्राम ग्रीन टी लिया है, उस 10 ग्राम में 3 ग्राम आपका क्या होगा, फ्लेवोनॉइड्स.
one flavonoid routine that is also called a quercetin 3 ramonoglucoside complexes with iron to cause dark decoloration of canned food. तो अगर आयरन के कैन फूड में रखते हैं, आयरन के कैन में अगर इसको स्टोर करोगे तो क्या बना देता है, ये रूटीन जो है वो डार्क जो है वो कलर कर देता है फूड का। तो इसीलिए टिन जो है वो यूज किए जाते हैं, आयरन का जो है वो पैक जो है उसके लिए यूज नहीं करते, यानी कि टिन कॉम्प्लेक्स इन कंट्रास्ट प्रोड्यूसेस अ डिजायरेबल येलो कलर। तो टिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है तो येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आयरन के कंटेनर में रख दिया तो ये डार्क कलर जो है वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। द यूज्ड एज सिंथेटिक स्वीटनर, जो फ्लेवोनोन्स होते हैं, तो फ्लेवोनोन जो है वो इट इज बेसिकली फाउंड इन सिट्रस प्लांट, नारंगिन। नारंगिन जो है वो फ्लेवोनोन है एंड इज फाउंड इन सिट्रस प्लांट। ओके, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सिंथेटिक स्वीटनर। सिंथेटिक स्वीटनर का मतलब समझ के आर्टिफिशियल शुगर, जो शुगर फ्री बहुत यूज करते हैं। शुगर फ्री क्या है, शुगर फ्री बेसिकली है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो कुछ प्लांट से मिलते हैं, उनको नेचुरल स्वीटनर बोलते हैं। जो शुगर मॉइटीज है, ये स्वीटनर जो है वो स्वीट जो है वो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो जो नारंगी यानी कि जो सिट्रस फ्रूट होती है, इसमें जो इसमें जो नारंगीन होता है फ्लेवोनोन, वो किसकी तरह यूज होता है, सिंथेटिक स्वीटनर की जगह, इन प्लेस ऑफ शुगर जो है वो यूज होता है। तो नारंगीन में ये है, तो कंपाउंड टाइम दैट ऑफ सुक्रोज। तो जो कंपाउंड अगर नारंगीन से सिंथेसाइज करें, उसकी स्वीटनेस क्या होती है, जो सुक्रोज जो शुगर हम लोग खाते हैं उससे कितना 2000 टाइम्स मोर होती है। So naringine with neohesperidoz यानी कि disaccharide of ramonose and glucose in alpha 1,2 linkage in position 7, यानी कि 7th पोजीशन पर क्या होगा, 7th पोजीशन पर अगर क्या हो, disaccharide of ramonose and glucose in alpha 1,2 linkage is intensely bitter। ये क्या होता है, अगर ये नियोहेस्पेरिडोज बन रहा है नारंगीन, इसके साथ क्या करता है, बिटर टेस्ट देता है। वेयर एज एन आइसोमर ऑफ अब 1,6 लिंकेज, अगर 1 और 6 पोजीशन पे आपका ग्लूकोज है, रेमनोज और ग्लूकोज, तो ये कंपाउंड क्या होता है, टेस्टलेस। नेक्स्ट पिगमेंट इज द टैनिन्स। Tannins are also known as tannic acid or gallotanic acid. These tannins are complex mixture of polymeric polyphenols। ठीक है, किसका मिक्सचर होता है, पॉलीमेरिक पॉलीफिनोल्स का मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। गालनट, गालनट एक इसको बोलते हैं माजू फल, तो यूज करते हैं माजू फल इसको बोलते हैं। इट कंटेन्स 50 to 70% tannin। Tannins are basically divided into two groups. Condensed tannins and hydrolyzable tannins. जो condensed tannins हैं, these are the compounds in which the nuclei are held together by the carbon-carbon or ether linkage. You can see the structure. The catechins and related compounds belong to this group. Catechins और उससे related compound किसको belong करते हैं, condensed tannins। And the other group tannins are ester-like and are the polymers of gallic acid, gallotannins and ellagic acid। टैनिन की वजह से जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस टू येलो और ब्राउन। Tannins contribute to the astringency of food and also to the enzymic browning reaction. What are enzymic browning reaction?
आपने देखा होगा जैसे देयर आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब उनको कट करके रखो तो ब्राउन होने लगता है, लाइक एप्पल, बनाना। जैसे ही उनको बनाना को पील करके आप रखोगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ब्राउन। एप्पल को अगर काट के छोड़ दो तो क्या हो जाता है, ब्राउन, है ना। तो ये क्या, these reactions are called enzyme browning reaction. Enzymes है, there are some enzymes which are responsible for the browning of these fruits and vegetables. तो ये जो, जैसे इसका कलर है, किसी का लाइट कलर है, जितना ज्यादा टैनिन होता है उतना ज्यादा ब्राउनिंग होती है स्किन की। ऐसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी टैनिन जिसमें प्रेजेंट होता है, तो जितना अमाउंट टैनिन का होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो ब्राउनिंग रिएक्शन। So this is all for today. In next class, we start with the next pigment, that is the betalains, quinones, and xanthamones, carotenoids, and some synthetic pigments. जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, these all are the natural pigments. After this, we'll start with the synthetic pigment. So this is all for today. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Welcome.